नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने राज्य अध्यक्ष अब्दुल मजीद की अगुवाई में एक बड़ा चलो बेंगलुरु प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान अफसर कोदलीपेट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान एसडीपीआई ने कई मुख्य मांगे उठाई। पहला, मधुसूदन नाइक जाति जनगणना रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक कर लागू किया जाए। दूसरा, 2B श्रेणी के संरक्षण के साथ साथ आरक्षण को बहाल कर 8% तक बढ़ाया जाए। तीसरा, जारी शिक्षक भर्ती में उर्दू, हिंदी, मराठी और गणित शिक्षकों के पदों को शामिल किया जाए। और चौथा, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का गठन हो और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। राज्य मंत्री डॉक्टर अजय सिंह ने फ्रीडम पार्क पहुंचकर एसडीपीआई के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षक भर्ती और सामाजिक न्याय से जुड़ी उनकी तमाम मांगों और शिकायतों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से समीक्षा करेगी। मौलाना आसिफ साहब, कल भी हम माइनॉरिटी मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर साहब को मिले थे कि उर्दू टीचर का सिलसिले में बात करने के लिए गए थे। मैं और अफसर साहब जब अपने बात करने में वादा किए 2B रिजर्वेशन हमारा एजेंडा में है, हम लागू करेंगे। हम देखते हैं तुम्हारा एजेंडा में है तो लागू करेंगे, क्योंकि देखो कितना बेइज्जती है, नाइंसाफी है। आपको वोट बैंक और गुलाम लोग समझे हैं ये लोग, तो इसलिए ऐसा नाइंसाफी हो रहा है। क्योंकि मुसलमान कौम क्या है, कैसा भी वोट डालते हैं, हमें इनका क्या भी डिमांड पूरा करने का जरूरत नहीं है बोलकर करते हैं। ಹಾಗಾಗಿ 2B रिजर्वेशन ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए, ये डिमांडों को सरकार के सामने रखने के लिए हमारे स्टेज में मौजूद जनाब मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब को मैं दावत देता हूं, वो आए अपने तासुरात को बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ
ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ, 28 ಆಗುತ್ತೆ, 38 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಸ್ಥೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಿನ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಕಾರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ 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 80 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದೇ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುವವರಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿಜಾಬನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇವರಿಗೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡೋದಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ZPTP, ULB, GBA ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಲಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಜು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ, ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಓಟನ್ನ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಓಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವತ್ತು ಈ ಕುರ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಮಾಗಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು SC, ST, ಮೈನಾರಿಟಿ, OBC ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನ ವರ್ಗದವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಂತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಸಹೋದರರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ SDPI. अगर अपना नजरिया एक रखोगे तो ये लीगल
ಸರ್, ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕೋಬಿತದ್ದು ಹೌದು, ಅದು ಅದನ್ನು 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ BJP ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ 2-3 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 358 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 358 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ये सबसे पहले ये मांग है कि मधुसूदन नायक कमेटी का जो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को पेश किया है, रियासती सरकार को, उसे फौरन जारी करने और एक्सेप्ट करने के लिए हमारा डिमांड SDPI डिमांड कर रही है। मैं फॉर्म का एक लीडर होते हुए SDPI के इस डिमांड मैं खुद भी सारी कौम की तरफ से इस डिमांड को रियासती हुकूमत के सामने हमारा सख्ती कौम का डिमांड है, ये बात मैं रख रहा हूँ। डिमांड ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ये कायम किया जाए। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन जो है उसका काम ये होता है कि वो सारे जितने भी लोग हैं इन सबको इंसाफ हो रहा है क्या हुकूमत से, हुकूमत के स्कीम्स में और बजटरी अलोकेशंस में, और जहाँ जहाँ जिसको जो हक मिलना है उन सारे हकूक गारंटी करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन होना चाहिए। इसे 1947 से हमारी जमीयत-उल-उलमा हिंद डिमांड कर रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिमांड कर रहा है, बहुत सारी तंजीमें इसका डिमांड कर रही हैं। इसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और सिर्फ एक समुदाय को, एक ग्रुप को इंसाफ नहीं होगा, बल्कि सारे लोगों को इससे इंसाफ होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ये हमें आज़ादी जब मिली 1947 से, तब से सबका डिमांड है, खुसूसन हमारा डिमांड है। और वो श्री मनमोहन सिंह कमेटी, मनमोहन सिंह जब हुकूमत में थे, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाने के लिए पूरा मसौदा तैयार कर लिया और पार्लियामेंट में पेश किया। जब BJP और RSS के डिमांड की वजह से उसको वापस लेना पड़ा, वापस ले लिए। अभी रियासती हुकूमत को हम डिमांड कर रहे हैं कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन कायम करे और उसके जरिए सबको इंसाफ दे, और मुसलमानों को भी इंसाफ मिलेगा, दलितों को भी मिलेगा, पिछड़ी कौमों को मिलेगा, ब्राह्मण्स को भी मिलेगा, लिंगायत को, गौड़ों को सब मिलेगा। अच्छा, ये जो 15,000 की नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसके अंदर उर्दू का नाम निशान, इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासती हुकूमत और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बहुत अक्लमंद हैं और समझते हैं बात। देखिए, सारी रियासत में तकरीबन 5,500 उर्दू स्कूल्स थे, बाद में घटते घटते वो 4,300 हो गए। अब 4,300 में भी तकरीबन 150 स्कूल्स हमें इत्तला मिली है कि बंद होने के कगार पे है। ऐसी सूरत में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को चाहिए कि वो 15,000 में से 15% जो हमारा हिस्सा बनता है, तकरीबन 2,500 टीचर्स को रिक्रूट करें, उर्दू टीचर्स को, और उर्दू स्कूलें जो बंद हो रही हैं उन्हें मॉडर्नाइज करके और उर्दू टीचर्स को टीचर्स ट्रेनिंग और ज़रा स्पेशल ट्रेनिंग देके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेहतरीन एजुकेशन मिलने के जैसे हालात पैदा करके स्कूलों को बंद करना बंद करें और स्कूलों को खोलें। अभी हमें सारे हिंदुस्तान में फेमस हो गए हैं, योगी हुकूमत जो है स्कूलों को बंद करने में मास्टर हो गई है। मैं चाहता हूं कि यहाँ की हुकूमत हमारी ऐसा नाम ना ले, जो नाम उनको है वो उनको रहने दे। हमारी रियासत बेहतर है, आप लोग समझदार हैं, बेहतर है कि उर्दू टीचर्स को अपॉइंट करें और उर्दू स्कूल्स को बढ़ाएं, कम ना करें।
तो इसमें नंबर 1 क्या है, मधुसूदन नायक जो रिपोर्ट है, कैश सेंसस बोलते हैं, ऑलरेडी जो 450 करोड़ खर्चा करके रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये रिपोर्ट तो सिद्धरामैया जो रिजाइनेशन करने का देने से पहले एक दिन पहले 27 मई को एक्सेप्ट भी किया, रिसीव किया। इसको हुकूमत एक्सेप्ट करना है और ऑन करना है और इसका ऊपर डिबेट होना है और उसके बाद इसका जितने भी रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंट होना है। ये नंबर 1। नंबर 2, जो मुसलमानों का जो 2B रिजर्वेशन है, ये 2B रिजर्वेशन बीजेपी ने जो खारिज कर दिया था, तो ये कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि हम लोग इसी दिन इसको लागू करेंगे। ये रेस्टोर करना है 8% को 2B रिजर्वेशन को जो अपग्रेड करना है। ये हमारा दूसरी रिक्वेस्ट है। तीसरी रिक्वेस्ट, तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले जो न्याय पत्र जो मैनिफेस्टो दिया था, ये मैनिफेस्टो में एक वादा किया था इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाएंगे ऑल इंडिया लेवल। हम मुतालबा करते हैं, अभी तो सेंट्रल में आपका हुकूमत नहीं है, कांग्रेस हुकूमत है कर्नाटक, पहले कर्नाटक में आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन लागू करो। ये हमारा तीसरा डिमांड। 4th डिमांड ये है हमारा, आजकल क्या हो गया, गवर्नमेंट सब प्राइवेट कर रहा है, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहा है, रेलवे को प्राइवेट कर रहा है, जॉब्स जो है गवर्नमेंट में कम होते जा रहे हैं प्राइवेट। तो सोशल जस्टिस अगर देना है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करना है मिनिमम में 40%, इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए। ये भी हमारा डिमांड है। 5th और इम्पोर्टेंट डिमांड ये है, आप तमाम लोग जानते हैं, अभी हाल ही में कर्नाटका जो टीचर्स रिक्रूटमेंट में 15,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। तो इसमें उर्दू मीडियम स्कूल का एक भी टीचर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड किया गया। ये जो 1 करोड़ जो मुसलमान है कर्नाटक में, इनका ऊपर जो नाइंसाफी हुआ है, जितने भी एस्पिरेंट हैं, तो करीब बताया जाता है कि बहुत सारे उर्दू स्कूल्स में टीचर्स नहीं है या डेप्यूटेशन है। ये जो नाइंसाफी हुआ है उसको करेक्शन करके इमीडिएटली उर्दू मीडियम स्कूल का टीचर्स का रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी कर। 5 मुद्दा है, ये अहम हम लोग डिमांड किए हैं, अभी आप देखे हैं। जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव का सीएम दिल्ली को है, अजय सिंह साहब जो मिनिस्टर ऑफ माइनर एजुकेशन एक्टिविटी को आकर हमारा डिमांड लिए, सीएम के साथ इसका ऊपर डिस्कशन करके वो होते हैं और सीएम का एक मीटिंग का भी वादा किए हैं। हम लोग इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक ये पूरे डिमांड मुकम्मल नहीं होगा तब तक हमारा ये जो एहतजाज जारी रहेगा। आइंदा दिनों में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका समावेश करेंगे और अप टू विलेज लेवल तक इस मुद्दा लेके जाएंगे। तो इसका फेल्यूर जो है, हमारे माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका फेल्यूर। फॉर एग्जांपल अभी अजय सिंह साहब आके गए, अजय सिंह साहब का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो माइनॉरिटीज जो होते हैं अराउंड 70,000 वोटर्स, अराउंड 30% वोटर। अभी जार्ज देखिए, जार्ज का कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 2 लाख के ऊपर माइनॉरिटीज है। भैरती सुरेश मिनिस्टर है, उधर जो माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन है करीब 80 पर 5,000 है। यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी का वोट है, इनको माइनॉरिटी का वोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए मगर वो माइनॉरिटी का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही रहेंगे, जितने भी ये जो मिनिस्टर बन के माइनॉरिटी का वोट लेकर घूम रहे हैं ना, हर जगह एसडीपी अपना कैंडिडेट डालने वाला है और इनको हम लोग सबक सिखाएंगे। एक अल्टरनेटिव होकर एसडीपी ऊपर में आया है। फ्यूचर 2028 इलेक्शन मुझे बहुत अफसोस होता है। देखो, इलेक्शन के टाइम में ये मुत्तहिदा महाज और बहुत सारे महाजे निकलते हैं, कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो। उसके बाद जो कांग्रेस हुकूमत आने के बाद
टाइम टू टाइम जो अकाउंटेबल करना, टाइम टू टाइम इसको आवाज़ करना, ये लोग चुप हो जाते हैं। उलेमा बयान करते हैं, सब लोग बयान करते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मुत्तफिक हो, मुत्तहिद हो, मगर ये जो नाइंसाफ़ी होता है वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ कुछ अकाउंटेबल करना, कुछ एहतसाब करना, कुछ पूछना, ये तो बिल्कुल ये नहीं करेंगे। तो ये क्या है, इसलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या समझे हैं, माइनॉरिटी वोट है टेकन इनटू ग्रांटेड समझे हैं, तो इसलिए हमारा मुद्दा सॉल्व होने वाला है। मगर ये बार ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे इलेक्शन है। जीबी इलेक्शन है, ZPPTP इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन है। ये तमाम इलेक्शंस में SDP का मुद्दा, ये तमाम चीज़ें। देखिए, कांग्रेस हुकूमत में आके 3 साल का अरसा गुजर रहा है। यही कांग्रेस हुकूमत एक वादा करी थी, अगर हम हुकूमत में आएंगे फर्स्ट डे हम 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे। 3 साल का अरसा गुजर गया, आज तक वो वादा पूरा नहीं की। तो हमारे कोर डिमांड में 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करना और 8% को इंक्रीज करना। दूसरा हमारा मुतालबा, इतिहास में पहली मरतबा कर्नाटक के उर्दू स्कूलों के साथ नाइंसाफी हुई है। 15,000 टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया, एक भी उर्दू मीडियम के मैथ्स हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो या उर्दू हो, टीचर्स को कालपार नहीं किया गया। तो हमारा दूसरा मुतालबा ये है, एक री नोटिफिकेशन किया जाए या एडिशनल नोटिफिकेशन किया जाए, ये नाइंसाफी को इंसाफ दिया जाए। तीसरा हमारा मुतालबा ये है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लाया जाए। चौथा हमारा मुतालबा, जो राहुल गांधी स्पीचेस में बता रहे थे भारत जोड़ो यात्रा पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को लाने का, कर्नाटक में आपकी हुकूमत है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को लाया जाए। और आखिरी हमारा मुतालबा, मधुसूदन नायक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को बहाल किया जाए। तो आज हमारे इस एहतजाजी पंडाल को स्मॉल इरिगेशन मिनिस्टर एक्स CM धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह आए हैं और उर्दू के बारे में बहुत शायरियाँ भी वो बोलते हुए उर्दू के उनके बाबा के साथ जो कनेक्शन थे वो भी यहाँ बयान किए हैं। हमें उम्मीद है वो डिमांड्स लेके जाके CM के साथ वो डिस्कशन करेंगे और हमारे डिमांडों को फुलफिल करेंगे। ये पूरी दुनिया उम्मीदों के ऊपर खड़ी हुई है, हमें भी गवर्नमेंट से ये उम्मीद लगाए हैं, अगर इस बार भी आप चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आज काल भी दे चुके हैं, पूरे अहिंदा कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर हम हर तालुक को जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, हर विलेज को जाएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ, जो नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे।